Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. As you all know that result for phase 1 of NABARD Grade A 2021 exam is going to be declared very soon. So I think you all have started preparing for phase 2, and in this video lecture series we are going to cover descriptive types of questions. I have already uploaded 2 or 3 videos to how to cover this descriptive types of question, and this is part 2 of the video. I just want to tell you one thing, that the question which you are going to face in this descriptive types of descriptive types of question, the question are not very tough. It is going to be very simple, and it is going to be taken from some current issues like doubling farmer incomes, or if we talk about the static part, then you are not going to take face any difficult question on this in this your descriptive types of parts. So before moving ahead, I would like to inform you that we are providing NABARD Grade A course at ₹2499, and we are covering all these topics. We are also providing 5 ESI ARD mock test for phase 1 and 5 ESI and ARD mock test for phase 2. For more update, you can visit our website, that is www.crackgradeb.com. Recently, we have launched our app, and we are providing 2 ESI ARD GA mock tests free of cost for all new users, and you can also buy our test series at ₹499 only, or our paid users can register that app and send email to us, that is crackgradeb@gmail.com for access this app, and we are also working on iOS app. So more update you can have from our website, that is www.crackgradeb.com. So I was telling you that what types of questions you are going to face in phase 2 of this exam. I am simply saying you that you are not going to face very difficult types of questions. So don't waste your energy in preparing in a very difficult types of question. Either it may be from ARD, either it may be for current section. So I would like to suggest you that if you are reading newspaper, if you are reading magazines, so the hot topics of current news from agriculture and rural development section, you can make some list of these topics, and on the basis of this topic you can prepare you can self prepare your own questions, and by preparing this question you can practice these types of questions your own. First question which I have taken, and I have taken these questions totally based upon your syllabus. I think you all read about your syllabus, so you have heard the word that is Panchayati Raj system. So I have made these questions on Panchayati Raj. My question is, Panchayati Raj is the backbone of the India. You have to tell what are the functional responsibility of the panchayat, and what is the funding pattern, or how the fund is flown into the Panchayati Raj system. Source, I am telling you, I have taken this question from Kurukshetra, September 21. So you can also read this question. If you want to add some more things, so you can go and read this Kurukshetra September 2021 magazine. You will find this topic in very detail, in a very comprehensive manner in this Kurukshetra magazine. So how you will start? First of all, friends, I would like to tell you that I have prepared this question by keeping in mind objective as well as descriptive part of your syllabus. So I have made this question in point wise form, but when you are going to write this question, you will follow the sequence of introduction, main body or conclusion, which I have told you earlier. So start करते हैं, how this Panchayati Raj system is going to be backbone, and what are the functions and responsibility, and what is the flow of funding into this Panchayati Raj system. As you all know that if you go into the deep history of this Panchayati Raj system, you will find that during Mughal era, Panchayati Raj system was caste ridden, that some people which belong to the particular caste, so they run the Panchayati Raj system in village
in their respective village. And what was the main purpose? The main purpose was to collect taxes. But in British rule, if you will find the Royal Commission, I think you have heard about this word Royal Commission, Simon Commission, they have started decentralization, dissemination, the power to the local bodies. But when we were preparing our constitution, so there was a fight between the Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar. Why they were fighting? According to the views of the Mahatma Gandhi, he was asking for the self-realization to the villagers. But what about this Dr. Ambedkar? He said that village has a very little chance to succeed because they are caste ridden. जो हमने देखा, it was in Mughal period. So after taking the views of Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar, we have inserted Article 14 in our Directive Principle of State Policy. तो ये आर्टिकल क्या कहता है? The state shall take steps to organize village panchayat and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them function as a unit of self government. आपको क्या लगता है कि ये आर्टिकल जो है सफिशिएंट था हमारे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने के, जो हमारा 3 tier स्ट्रक्चर सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए? आई विल से नो, ये सिस्टम वॉज नॉट सफिशिएंट. बट अभी क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बन गया. उसके बाद क्या हुआ कि एक फर्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, वो स्टार्ट हुआ 1952 में. तो इस 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, पर यह था कि इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाया इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने के लिए. अब उसके बाद देखो, ये जो है आपको अपने क्वेश्चन के आंसर में ऐड करना है, ये आपकी मर्जी है. अदरवाइज मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है. बट मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंट इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले. तो जल्दी से इसको फटाफट देख लेते हैं. बलवंत राय मेहता कमेटी क्या हुई थी 1950, और ये जितनी भी कमेटीज़ हैं ये सारी की सारी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड हैं. तो बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1957 और इसने क्या रिकमेंड किया था? इसने रिकमेंड किया था 3 tier सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉर पंचायत. बट उसके बाद क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ लोगों को, तो अशोक मेहता कमेटी को फॉर्म किया गया 1977 में. इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि भाई 3 tier सिस्टम को ना लेकर यू हैव टू फॉर्म 2 tier सिस्टम एट द ग्राउंड लेवल ऑफ द गवर्नेंस. देन एक जीवी के राव कमेटी फॉर्म हुई थी, वो 1985 में ही हुई थी, और उसने एडवाइस किया द इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट. देन इन लास्ट LM Singhvi committee comes into picture and he emphasized the need of the constitutional recognition of the local self-government. So government has heard the views, heard the outcome of this LM Singhvi committee, और उन्होंने 73rd Constitutional Amendment Act 1992 को पिक्चर में लेके आए, और 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इनेक्टेड इन 1992, और उसने एक पार्ट को ऐड किया दैट इज कॉल्ड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन. द पंचायत ऑल्सो एडेड द 11th शेड्यूल through this Constitutional Amendment Act 1992, which consists of 29 functional items of the Panchayat, 243A to 243, 29 आप काउंट कर लेना, 2243D, not D, it is C. Then 73rd Constitutional Amendment Act 1992 came into force on 24th of April 1993. Remember this date? बिकॉज आपके जो एग्ज़ाम है ना, इसमें नाबार्ड में तो एटलीस्ट ये इस तरह की डेट वगैरह नहीं पूछेगा, बट वो पूछ सकता है कि भाई किसने कौन सी कमेटी जो है फॉर्म की. सो ये मैंने एडिशनली दिखाया है, आप इसको अपने सब्जेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में यूज़ कर सकते हो. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जो पंचायती राज सिस्टम में क्या दिया गया है. आर्टिकल 243O जो है वो डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हैज़ मैंडेट दैट नॉट लेस देन 1/3 सीट्स एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन. ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, लेकिन क्या हुआ, अलग अलग स्टेट्स ने अपने हिसाब से काम किया. उन्होंने बोला 20 स्टेट्स में अभी जो है इंडिया के अंदर कंट्री हैव मेड प्रोविजन इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट पंचायती राज एक्ट
फॉर 50% ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन। अब बात करते हैं कि फंक्शनल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पंचायत की। अगर मैं कहूँ तो इनकी जो फंक्शनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप उनको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो। एक है मैंडेटरी फंक्शन, एक है जनरल फंक्शन और एक है सेक्टरल फंक्शन। मैंडेटरी फंक्शन में आप देखोगे तो जो सिविक और रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं वो इनके मैंडेटरी फंक्शन होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, थ्रू ग्राम सभा। और आप अगर देखोगे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम पर, तो जो पंचायत का जो लेवल है, 3 टियर है हमारा, 3rd टियर है हमारे स्ट्रक्चर का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का इंडिया के अंदर। तो आप देखोगे कि इस लेवल पर इसके अलावा कोई एजेंसी नहीं है जो सिविक और रेगुलेटरी फंक्शन पर काम करे। इसके बाद जनरल फंक्शन क्या है, जनरल फंक्शन है इसके जो आपकी ग्राम पंचायत है उसमें जो प्लानिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, सुपरविजन हो रहा है और डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको ये मॉनिटर करते हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल है 14 जनरल एक्शन इंक्लूडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट द सोशल इल्स, रिलीफ ऑपरेशन, रिस्पॉन्स मोबिलाइजेशन और गैदरिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, क्रिएटिंग लीगल अवेयरनेस। इस तरह के जो काम हैं वो पंचायत ने किए हैं रिसेंटली केरला के अंदर। देखिए केरला हमारे यहाँ पे बहुत डेवलपिंग स्टेज है और ये सब काम बहुत अच्छे से करता रहता है। तो आप बस इतना याद रखना कि जनरल फंक्शन जो है वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सुपरविजन और डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके बाद सेक्टरल फंक्शन अगर आप देखोगे तो ग्राम पंचायत इज ऑल्सो नोन फॉर सेक्टरल फंक्शन और एजेंसी फंक्शन। लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उसने उसको एनवीसीएस किया है, जो पंचायत है उसको प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस इन रेस्पेक्ट ऑफ द 29 सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन 11th शेड्यूल। तो ये है इसके सेक्टरल फंक्शन। आप 3 पार्ट में डिवाइड करके ये आपके जो क्वेश्चन है ना उसका पार्ट है। अब मैंने पूछा था उसके अंदर कि इसके अंदर फंड फ्लो कैसे होता है, तो आर्टिकल 243I जो है वो फंड की बात करता है। इसमें आपका एक स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है फॉर्म होता है, वो एक स्ट्रक्चरल इंट्रा गवर्नमेंटल फिजिकल रिलेशन टू द स्टेट लेवल। एसएफसी जो है, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर इसको फंडिंग देने के लिए। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि पंचायत के पास जो है वो फिजिकल गैप बहुत ज़्यादा है, तो स्टेट फाइनेंस एंड कमीशन क्या करता है, कुछ सूटेबल रिकमेंडेशंस बनाता है और गवर्नर को भी बोलता है कि भैया इनका जो इशू है टैक्स डिवोल्यूशन का, ग्रांट इन इट का, वो आप गवर्नर साहब जो है इन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ये कौन रिकमेंड करता है, ये करता है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन। So SFC ensure regular flow of the funds to the पंचायत by defining revenue sharing arrangement और between the state and पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जैसे आपका फाइनेंस कमीशन होता है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में फाइनेंस को डिवोल्यूट करता है, उसी तरह से स्टेट फाइनेंस कमीशन आपका स्टेट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बीच में इसको फंड को फ्लो करता है और उसको डिवोल्यूट करता है। तो आर्टिकल 243I है, ये याद रखना आप। अब हमारा जो देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, इसमें मैंने आपको बताया बैकबोन है, कहाँ से शुरुआत हुई, हिस्ट्री बता दी मैंने आपको। उसके बाद फिर मैंने आपको उसका फ्लो बता दिया, फंक्शनल भी बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी। अब देखते हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, इस पर आप ध्यान देना। व्हाट आर द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम 2022। बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के, तो इस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान देना। गवर्नमेंट जो है अपनी पूरी दम लगा रही है, गवर्नमेंट इज फाइटिंग, गवर्नमेंट इज पुशिंग ईच एंड एवरी कॉर्नर, ईच एंड एवरी सेक्टर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ की भाई जो गवर्नमेंट जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है वो 2022 तक इनकी डबल हो जाए। तो उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए वो आपको इसके अंदर बताने हैं, तो वो मैं आपको स्टेप डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एमएसपी को इंक्रीज किया, इन्होंने 1.5 टाइम्स कर दिया। सबसे पहला स्टेप इन्होंने लिया है एमएसपी को इंक्रीज करने का। उसके बाद इन्होंने बोला कि फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप बढ़ाओ। क्या किया, नियरली 86% ऑफ द फार्मर इन द कंट्री आर स्मॉल, ये हम जानते हैं, स्मॉल है, मार्जिनल है, वो हैव एन एवरेज होल्डिंग लेस देन 1.4 हेक्टेयर। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो इन लोगों तक पहुंच नहीं पाती। तो उन्होंने बोला है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को आप फॉर्म करो। सो सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस given assistance worth of rupees 6865 crore has been given to small, marginal and landless farmer in addition to giving a approval for setting up of
10,000 FPO to enable farmers share their views candidly. इसके बाद FPO को इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन क्लस्टर इनिशिएटिव्स के साथ भी लिंक किया है। अब देखेंगे सोशल सिक्योरिटी के लिए इन्होंने क्या किया है फार्मर्स की। यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 ईयर्स की एज के बाद गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू गिव ₹3,000 एज अ पेंशन टू अंडर दिस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इससे भी फार्मर्स को फायदा मिलेगा कि भाई 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलने वाली है। देन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू किसान मानधन योजना, ये आपको पता होगा कि सम्मान, जितना आपने देखो स्कीम पढ़ी है, तो अगर ये डबल इनकम वाला क्वेश्चन आता है तो स्कीम तो पक्का आप उसके अंदर डाल देना। तो ये किसान सम्मान निधि योजना जो है उसके लिए ये ₹2,000 हर 3 साल के अंदर किसानों के अकाउंट में डालते हैं। इसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स किया है इन्होंने। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटाइजेशन इन एग्रीकल्चर, एफर्ट्स आर बीइंग टेकन टू प्रिपेयर अ फेडरल फार्मर डेटाबेस। तो ये एक लैंड रिकॉर्ड्स को वो भी कर रहे हैं कि भाई इसको डिजिटाइज किया जाए। इसके अलावा ये इन्होंने क्या किया है कि भाई फीड रिवॉल्यूशन जो है उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। दे आर पुशिंग फीड रिवॉल्यूशन टू डबल द फार्मर्स इनकम। इन्होंने इसके लिए क्या किया है, एक नेशनल बी हनी मिशन को लॉन्च किया था जून 2020 में अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। और इसमें इस जो सेक्टर है उस सेक्टर को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए दे हैव गिवन 5,000 करोड़ रुपीस। किसान रेल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, आपको पता होगा। तो ये क्या है, एक नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन इन्होंने एक प्रोवाइड करी है थ्रू दिस किसान रेल फॉर एसेंशियल एंड अर्ली टाइमली ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फ्रूट्स लाइक मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अक्रॉस द कंट्री। तो ये क्या है, ये भी जो है फार्मर्स को एक बूस्ट देगा कि भाई उनका जो आइटम है, सब्जियां हैं, दूध है, वो खराब हो जाते थे, अब वो किसान रेल के थ्रू दूसरे देश के हर कोने में पहुंच रहे हैं। इन्होंने फिर एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, अ टारगेट ऑफ 16.50 लाख करोड़ हैज बीन सेट फॉर ग्राउंड लेवल क्रेडिट फॉर ईयर 2021-22 विद एन आई लिंकिंग एवरी फार्मर टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। द टारगेट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 7 lakh to 13.50 crore in 2009-20 as compared to 2013-14। अब ये 2021 और 22 में इसको 16.50 कर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने एक स्पेशल कैंपेन भी शुरू किया है, रन्स इन February 2020 to bring farmer under the ambit of Kisan Credit Card. According to the data received from the public sector bank, NABARD 187.03 lakh क्रेडिट कार्ड जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं फार्मर्स को टिल जनवरी 2029 2021। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट फ्री लोन। देन टू इंक्रीज द इरिगेटेड क्रॉप एरिया, अब ये क्या इस पर भी काम कर रहे हैं विद सेवरल इनिशिएटिव लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड, extending irrigation facility, crop insurance. Country has increased the area under summer crop, that is 73.7 lakh hectare by 23 April 2021 from 60.611 hectare a year ago. इसके अलावा the area sown under the pulse increased from 6.5 lakh to 12.75 lakh hectare, registering almost 100% growth। तो ये irrigated areas को भी जो है बढ़ा रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, द क्रॉप एरिया ऑफ ऑयल सीड इंक्रीज फ्रॉम 9.3 टू 10.4। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो एरिया आप देख रहे हो जो पहले कम हुआ करते हैं वो धीरे धीरे बढ़कर ज़्यादा हो जा रहे हैं, जिसमें 100% ग्रोथ मिली है आपकी पल्स के लिए। पल्स की जो डिपेंडेंसी है इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर आवर कंट्री। तो फ्रेंड्स बहुत सारे पॉइंट्स आप डबल फार्मिंग इनकम में आप ऐड कर सकते हो, स्मॉल बना लेना पॉइंट और उनको आप ऐड कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से था। टिल आप पढ़ते रहिए मेहनत, सो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मैं आगे वीडियोस भी लेके आऊँगा इसमें। टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।